Hello and welcome you all in your political science class. So I am here with the most important topic in your series, that is the president under the union executive. So in this chapter, in this session, we will be discussing about one by one with the articles which is provided in the Constitution of India about president. So Article 52, which elaborate about the post of president. Article 53, which gives the power and functions of the president. Article 54 elaborate about the election. Article 55 elaborated with the manner of elections or the procedure of an election will take place in the presidential election. Then Article 56 will give the tenure or the term of the President of India, and Article 57 the re-election of President. Article 58 will gives about the information of the qualifications and the eligibility criteria of the presidential elections, and Article 60 will give the information about the oath यानी शपथ, and Article 61 will give the process of impeachment, means the process of removal of president, that is known as the impeachment. So let we have discussed one by one. Now if we talk about Article 52 post यानी पद, as we know the president of India is the executive head of Indian Republic. President इंडियन रिपब्लिक का एग्जीक्यूटिव हेड होता है. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है. सो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट और इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके अंडर में होंगी, किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी. सो दैट ही विल एक्सरसाइज हिज पावर ऑन the advice of office of PM and the council of ministers. हालांकि he is the executive head of a body or a republic of India, but in the advisory on the advisory of or the advice of the PM office, means the prime minister and their council of ministers, ये अपनी powers को execute करेगा. Means the one question will arise is who is the actual executive head of Republic of India? So उसका आंसर is not a president, is the prime minister. Prime Minister of India is the actual executive head, और जहां पे केवल executive head की बात आएगी वहां पे president होगा, but the actual executive head of Indian Republic is the Prime Minister of India. Okay? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज करेगा अपनी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स का ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट वी हैव कॉल्ड द ओनली द एग्जीक्यूटिव हेड, नॉट एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड. तो ये कुछ पोस्ट की बात हो गई अंडर आर्टिकल 52. नाउ आर्टिकल 53 इच एग्जीक्यूट द पावर एंड फंक्शंस. तो उसके पावर और फंक्शंस कौन कौन से होंगी, बट इस आर्टिकल 53 को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आर्टिकल ये जो 53 है पावर एंड फंक्शंस, ये बहुत ही बड़ा एक चैप्टर होने वाला है. देन इसमें मैं एक और वीडियो इंक्लूड करूंगा फॉर द पावर एंड फंक्शंस. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं. नाउ आर्टिकल 54 गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन ऑफ the president. So there is a kind of election that is indirect form, yani an indirect election would be taken or to execute to elect the president of India. Means कि जनता सीधे वोट नहीं करती है, एक्चुअली जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, द MPs and MLAs. मीन्स कि द मेंबर्स of both the houses, the member of both the houses, लोक सभा एंड राज्यसभा, तो इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये प्लस द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट.
मीन्स कि यहाँ पर जो जनता है, जो पीपल्स हैं, वो इनडायरेक्टली इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट नॉट डायरेक्टली. ओके, सो बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर, सो व्हाई इट इज कि यहाँ पे व्हाई इज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट is in the form of indirect election. They have a few reasons. That at first, the first reason is because the presidential powers extend both to the union government and the state government. क्योंकि जो presidential जो powers हैं वो union government और state government के लिए अध्याभूत है. पहला reason ये हो गया. And the second one is the costing of, अगर मान लीजिए general elections होते हैं, direct elections होते हैं, then the costing of in favor to execute the elections, there is a high cost of money, vast amount of money will be required. पहला ये हो गया. And we have to require the resources for that, बहुत सारे resources की जरूरत पड़ेगी. And because of there are the most of the peoples are illiterate right now in India, they are not suitably able to give their own opinion constructively. वो अपने ओपिनियंस को जानते समझते नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दे आर इलिटरेट मोस्ट. तो ये कुछ रीजंस कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते हैं. क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके लिए एक लंबा टाइम भी लगेगा और बहुत ज्यादा मनीज और रिसोर्सेज भी खर्च होंगे, इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. क्योंकि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उस पोस्ट को 6 मंथ से ज्यादा वैकेंट नहीं रखा जा सकता है. Now we talk about the electoral college, यानी निर्वाचक मंडल, यानी कि who are the peoples or who are the members that will participate in the presidential elections. तो वो कौन कौन होंगे? लोकसभा, the members, the elected members of लोकसभा. इलेक्टोरल कॉलेज बता रहा हूं कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. लुक, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज में आपका दिल्ली और पुडुचेरी जैसे. ठीक है, सो ये हो गया 3. And the fourth one is, which was also included in it, that there would be a 50 electors. इसमें 50 electors होंगे. Must be propose the name of a president. जिस president के पोस्ट के लिए as a candidate खड़ा होना है, उस पर्सन को उस president की पोस्ट के लिए कम से कम 50 MLA या MA, ठीक है, MP सॉरी, MLA या MPs as a electors होंगे, और 50 ही उसके सेकंड नॉमिनेटर्स के इलेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि इसी को प्रमोट करने वाले होंगे प्रमोटर्स, यानी इसको हम बोलेंगे अनुमोदक. हिंदी में अनुमोदक कहा जाता है. ओके, तो दीज आर द इलेक्टोरल कॉलेजेस दैट वी हैव here divided it into that will participate in the election of president. ठीक है, अब यहां पर देखिए तो लोकसभा ये आपकी यूनियन बॉडी हो जाएंगी, एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज ये आपकी स्टेट बॉडी हो जाएंगी. तो मीन्स कि इन दोनों ही फ्रेमवर्क से ये पता लगाया जा सकता है, जैसा कि शो हो रहा है, कि बोथ द बॉडीज, क्योंकि जो इंडिया का जो फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो दो चीजों पे डिपेंड है कि पहला है आपका सेंट्रल लेवल पर यानी यूनियन लेवल पर, और दूसरा है स्टेट लेवल पर. सो बोथ द पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, which were the elected members. ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इलेक्टेड मेंबर्स का यूज कर रहा हूं. ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद विधान सभा, जो हर एक स्टेट की विधानसभाएं होती हैं. क्लियर है? नाउ एक क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. व्हाई? यानी हर एक राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है
और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, यानी विधान परिषद होता है। विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? क्यों? क्योंकि इन टुडेज सिचुएशन अगर देखें इंडिया की टेरिटरीज में देखते हैं तो देयर बी आर 7 स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर देयर। केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। और अगर इनको भी हमने ये अधिकार दे दिया इन 7 को कि आप भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, करना है आपको, देन क्या होगा कि तो इसका ये होगा कॉन्सिक्वेंस कि जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, उस स्टेट्स का जो नंबर ऑफ वोट हो जाएगा वो ज्यादा होगा, तो दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अ पार्टिकुलर 7 स्टेट्स, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और इससे जो हमारा प्रोपोर्शनल है टू द अदर स्टेट्स, यानी 29 स्टेट्स को ले ले उनको, और उसके बाद यूनियन बॉडी को ले ले, उनके बीच में जो एक एक्चुअल प्रोपोर्शन जो हम बराबर लेके चलना है हमको, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी वजह से 7 जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको ये राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेशन करें इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स। ठीक है, देन ये तो बात हो गई आपका इलेक्शन की। इलेक्टोरल कॉलेजेस की हमने बात की कि दैट will participate in the presidential election. Now article 55, the manner of election. So it is a topic which will create the confusion in your mind, लेकिन मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। द मैनर ऑफ इलेक्शन, कि आखिर ये जो इलेक्शन होगा वो किस तरीके से होना चाहिए, ये इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। सो बेसिकली आवर कॉन्स्टिट्यूशन has taken special care to ensure the uniformity in the representation of different states as a whole and a union. यानी अलग अलग स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन यानी लोकसभा और राज्यसभा है, उनमें से सिमिलैरिटी या यूं कहें कि यूनिफॉर्मिटी को शो किया गया है टू रिप्रेजेंट देयर वोट ऑफ कास्टिंग। कैसे देखते हैं, तो उसको हमने डिवाइड किया 2 में। पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि और बेटर तरीके से समझा पाऊं। तो मैनर ऑफ इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, यानी एक इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। तो इलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से आपका इलेक्शन होना है, तो मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला तरीका है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपात। आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहाँ हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक यूनियन। तो यूनियन में एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो होते हैं 543 और राज्यसभा के मेंबर्स आपके हो जाएंगे 233, ठीक है। देन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 766, ये टोटल मेंबर्स हो जाएंगे आपके यूनियन में, ठीक है। जो यूनियन हमारा है तो उसमें हमारे टोटल नंबर 766 हो जाएंगे, इंक्लूडेड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, टोटल 766। अब ये तो बात हो गई स्टेट की, सॉरी यूनियन की। अब स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट में बात करेंगे तो इट विल इंक्लूड ऑल एमएलएज। हाँ, यूनियन में जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा एंड राज्यसभा में, उनको बोला जाता है एमपीज। सो बोथ द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो जितने ऑल एमपीज हैं उनकी संख्या 543 है और राज्यसभा में 233 है। और सेम एज द स्टेट में कौन आते हैं आपके एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधायक कहते हैं। ऑल एमएलए जो आएंगे सारे स्टेट्स 29 स्टेट्स को मिलाकर प्लस यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर, दैट विल 4120, ठीक है। तो अब देखिए वोट की बात देखते हैं। अब यहां पर तो स्टेट की अगर बात करते हैं तो दे आर 4120 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो वहां पर 766 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आखिर 766 और 4120 के बीच में एक एस्पेक्ट रेशियो जो है वो कम और ज्यादा का है। तो हमें इसे क्या लाना है, हमें इसे प्रोपोर्शनल लाना है। क्या लाना है, प्रोपोर्शनल लाना है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फॉर्मूला है कि कैसे आप इन दोनों के जो नंबर्स हैं 766 एंड 4120 को कैसे आप प्रोपोर्शन यानी इक्वेट करेंगे।
तो वो कैसे होगा, इसके लिए फॉर्मूला है, यानी कि हम इसके लिए वैल्यू ऑफ वोट करेंगे कि एमएलए का जो एक वोट का वैल्यू है वो कितना होगा, और जितने एमएलए या जितने एमपीज हो गए उनके वोट का वैल्यू कितना होगा, उस वैल्यूएशन के आधार पर हम इनके इलेक्शंस को फेवर करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फॉर्मूला जो है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहेगा, हम यहाँ पर वोट की वैल्यू निकाल रहे हैं ऑफ एन एमएलए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए की वोट की वैल्यू विल बी इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी जिस स्टेट के हम एमएलए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द स्टेट, टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन स्टेट, स्टेट में एमएलए की संख्या डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। लुक, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आया कि ये जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971। तो 1971 में जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 1971 में, अकॉर्डिंग टू 1971, उसके आधार पर ये पॉपुलेशन को हमें कंसीडर करना है और अभी भी करते रहना है। यानी कि जो पॉपुलेशन सेंसस आपका 2031 में होने वाला है, तो उसके 2031 के पहले जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें सेंसस जो होगा वो 1971 के बेसिस पर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो ये है कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल लेते हैं हम बिहार का, ठीक है, हम बिहार का ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971 दैट विल 4,21 lakh and 26,236, ठीक है। चलिए, 4,21,26,236 was the population of Bihar according to census 1971, and the total number of MLA in that state, यानी बिहार के जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए थे उनकी जो नंबर था वो 243 था, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपका आएगा लो 173, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 173 आएगी। तो ये एक एग्जीक्यूटिव डाटा है जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू, ठीक है। तो बिहार में इसको ऐसे ले सकते हैं कि सपोज बिहार एक स्टेट है, उस बिहार में जो एक एमएलए है उसकी एक वोट की वैल्यू क्या होगी, तो एक एमएलए के वोट की वैल्यू 173 हो रही है। तो इसी तरीके से हम एक एमएलए के किसी भी स्टेट के उसके वोट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे आंध्र प्रदेश की देखें तो वहां पर 243 उसकी वोट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और सिक्किम में सबसे कम होगी, उसकी वोट की वैल्यू 9 ही हो जाएगी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एमएलए भी कम है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो इस तरीके से अगर एक मोटा मोटा डाटा ले तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट इन ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू, यानी कि उसमें कितने आपके एमएलए थे 4120, तो उसका जो टोटल डाटा आएगा वो 4,49,474, ठीक है। तो 4,49,474 ये टोटल वैल्यू हो जाएगी सारे स्टेट्स को मिलाकर। ये क्लियर है, सारे स्टेट्स को मिलाकर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,49,474। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलिए, ये तो हो गई एमएलए, एक एमएलए के वोट की वैल्यू और भारत में जितने स्टेट्स हैं उनके एमएलए की वोट की वैल्यू। अब देखते हैं वोट वैल्यू ऑफ एमपीज, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, ऑफ एन एमपी, एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल द वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए,
जो हमने अभी अभी निकालना था, वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए, सारे एमएलए जो एंटायर आपके इंडिया में है 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के एमएलए को मिलाकर उनकी टोटल वोट की वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल एमपीज यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को मिलाकर टोटल एमपीज होते हैं। तो क्या आया था 5,49,474 एंड टोटल एमपीज इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा वो आपका कितना था 776। तो अब इसको डिवाइड देंगे तो वी विल गेट 708। ठीक है, तो एक वोट की वैल्यू, एक एमएलए के एक वोट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 708 हो जाएगी। ठीक है, 708 हो जाएगी। चलिए अब ये हो गया। देन टोटल वोट वैल्यू अगर की बात करें, टोटल वोट वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल 776 एमपीज। तो टोटल एमपीज कितने हैं इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा 776। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू इतनी है 708, तो 766 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देन अगर देखें तो लगभग 5,49,408, 5,49,408। ठीक है, देन अब देखिए कि ऑल अराउंड टोटल एमएलए की जो वोट वैल्यू थी वो कितनी थी, इतनी 4,49,474 एंड टोटल एमपीज की जो वोट वैल्यू हो गई 5,49,408। तो लुक दोनों ही लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम ही है। यानी कि यहां पर हमने क्या किया कि इन दोनों फॉर्मूलेस के इंक्लूड करके हमने जो यहाँ पर टोटल नंबर था वोट की वैल्यूज को इक्वेट करने की कोशिश की है, प्रोपोर्शनल में लाने की कोशिश की है। तो यानी कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो टोटल वोट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी टोटल एमपीज की वोट वैल्यू, एमएलए की वोट वैल्यू प्लस टोटल एमपीज की वोट वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। तो अराउंड 10,98,882। तो ये टोटल वोट वैल्यू आ जाएगी पूरे इलेक्टोरल कॉलेज की इंक्लूडिंग एमपीज, एमएलए एंड इंक्लूडिंग द लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबको मिलाकर ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट आ जाएगी। यानी कि अब जो चुनाव होगा किसी भी प्रेसिडेंट का वो इन वोटिंग के अकॉर्डिंगली होगा। ओके, ये सारी चीजें हो गई। सो द वोट वैल्यू ऑफ एमपीज एंड एमएलए, ठीक है, जो वोट वैल्यू है एमपी और एमएलए का वो प्रोपोर्शनल में रखा जाता है ताकि सबको समान वैल्यू, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले। इज इट क्लियर नाउ। अब इसका ये तो पहला चीज हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। देन द सेकंड मेथड फॉर दिस अंडर द इलेक्शन प्रोसीजर दैट इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको भी ध्यान से समझिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट, थ्रू सीक्रेट बैलेट। अब यहां पर क्या है, ये जो दूसरा मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, यानी कि वोटिंग पैटर्न बता रहा है। सपोज यहां पर 4 प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार खड़े हैं, रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, यहां पर ए, बी, सी एंड डी। ओके, ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और इनको यहां पर प्रेफरेंस देना है। सपोज मैं एक एमपी या एमएलए हूं, ओके, देन मैं बी को सोच रहा हूं कि इसको मैंने प्रेफरेंस डाल दिया। ठीक है, मैंने इसको प्रेफरेंस डाल दिया कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बी नाम का जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बने, ये मेरी इच्छा है। देन अगर ये नहीं बना तो मैं सोचता हूं चलो ठीक है ए को बन जाना चाहिए। देन उसी तरीके से मैं सी को 3rd प्रेफरेंस देता हूं और डी को 4th प्रेफरेंस देता हूं। तो मैंने ये क्या किया कि सबको प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है, मेरे ओपिनियन से कि हाँ ठीक है बी पहला बनना चाहिए, और अगर ये बी नहीं बना तो मैं सेकंड प्रेफरेंस अपना दूसरी वरीयता जो है सेकंड को दे रहा हूं, बी को दे रहा हूं, देन सी को 3 एंड डी को 4th प्रेफरेंस दे रहा हूं। अब यहां पर फर्स्ट स्टेज की बात आती है।
तो जितने भी लोग हैं एमपी या एमएलए वो अपनी वोट को कास्ट करेंगे, वो जितने भी एमपी या एमएलए हैं वो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, चारों कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे और देना पड़ेगा ही। सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को दिया ही नहीं, जैसे कि एक मेरा दोस्त है एमपी है मान लीजिए, और उसने किसी को पहला प्रेफरेंस नहीं दिया, उसने प्रेफरेंस दिया 2, 3, 4, तो उसका जो वोट की जो कास्टिंग होगी वो निग्लेक्ट हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी, उसको मतलब माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फेवर में नहीं आएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा, देन उसको कंसीडर किया नहीं जाएगा। तो आपको पहला प्रेफरेंस देना ही देना है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा या तीसरा प्रेफरेंस किसी को ना दे, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने प्रेफरेंस दिया। अब बात आती है स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चारों कैंडिडेट्स को एक साथ कंट्रीब्यूट किया जाता है और देखा जाता है कि कितना कितना वोट किसको मिला है एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो ये देखा गया कि बी को 25 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिले, देन बाकी सबको कम मिले, ठीक है। तो पहले ही स्टेज में ये देखने को मिल रहा है कि बी जीत जा रहा है, ठीक है, बी क्या जा रहा है, जीत जा रहा है। तो अगर टोटल देखते हैं तो 5, 5, 10, 64, ठीक है। तो टोटल 64 में आपका 25 जो है इसको मिल जा रहा है बी को, या इसको अगर देखें तो इसको और बढ़ा लेते हैं, 40 बढ़ा लेते हैं, और इसको हम 10 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि 41st स्टेज में जो 40 वोट है एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस बी को पसंद किया गया, तो यहां पर बी क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। लुक, इन केस कि पहले स्टेज में कोई भी विनर नहीं होता है, पहले स्टेज में कोई भी विनर नहीं होता है, तो सेकंड स्टेज में चला जाया जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है कि सबसे पहले यह कंसीडर किया जाता है कि सबसे कम वोट किसको मिले हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में सबसे कम वोट जिसको मिला होता है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है, और उसको जितने भी वोट, जैसे इसमें देखिए डी को 4 वोट मिले थे, सेकंड स्टेज में डी को 4 वोट मिले थे, तो इस डी के 4 वोट को इन बचे हुए लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, या एक उसके पास चला गया, देन ये खत्म हो गया। अब जो लड़ाई है वो ए और बी और सी के बीच में। सेकंड स्टेज में कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि जो जीतता है सेकंड स्टेज में, जिसके नंबर ऑफ वोट कास्ट ज्यादा होते हैं, देन उसी को एज अ विनर घोषित कर दिया जाता है, बट आफ्टर क्वालिफाइंग द फर्स्ट वन। अगर मोस्टली क्या होता है कि पहले स्टेज में ही सबको पता चल जाता है, विनर जो है डिक्लेयर हो जाता है। सेकंड स्टेज बहुत कम पाया गया है। अगर मैं आपको एक स्टैट्स के तौर पर समझाऊं तो 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसमें वीवी गिरी जीते थे सेकंड स्टेज में जाके। उसके बाद जितने भी इलेक्टर्स हैं, जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, उसमें से पहले स्टेज में ही विनर डिक्लेयर किया जा चुका है। बट एक केस ऐसा था जिसमें 1969 में आपका वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे सेकंड स्टेज में जाके, वो भी निर्दलीय थे, यानी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर में नहीं थे। क्लियर? अब बात करते हैं कोटा की। आखिर कोटा क्या होगा भाई? किसी भी वोट का, सिंपली सी बात है, 50% से एक ज्यादा वो विनर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 वोट टोटल पड़े, उसका हाफ 5001, उसका हाफ प्लस 1, ये विनर होगा, तो यानी कि हो जाएगा 5001। ठीक है, तो जो हाफ से एक ज्यादा, हाफ परसेंट से एक ज्यादा जो वोट कास्ट जिसके फेवर में होते हैं वो विनर हो जाता है। अदर रिलेटेड पॉइंट की अगर बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि तो 50 इलेक्टर्स मस्ट प्रपोज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि 50 ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स एमपी एमएलए जरूर होने चाहिए कि जो कि किसी प्रेसिडेंट के नाम को नॉमिनेट करें। पहली बात, उसको प्रमोट करें, प्रपोज करें नाम को, एंड एटलीस्ट 50 ऐसे होने चाहिए इलेक्टर्स शुड प्रमोट द नॉमिनेशन, उसके नॉमिनेशन को प्रमोट भी करें। तो यानी कि 50 + 50 कम से कम 100 ऐसे मेंबर्स जरूर होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स, जो किसी एक के फेवर में जरूर इलेक्शन कर गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, लेकिन कोई भी ऐसा एमएलए, बोथ द हाउसेस, कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है, एमपी या एमएलए, जो 50 जो मेरे को प्रमोट कर रहा हो। सपोज मुझे 40 लोगों ने प्रमोट किया और 10 लोगों ने प्रमोट किया, 10 लोगों ने प्रपोज किया इलेक्शन के लिए और 12 लोगों ने नॉमिनेट किया।
अब कितना हो गया, 10 और 12 22 हो गया। तो इस केस में मैं इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, यानी कैंडिडेचर मेरा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, जो कि प्रपोज करेंगे आपके नाम को एज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एंड 50 अदर ऐसे होने चाहिए इलेक्टेड जो कि आपके नेम को नॉमिनेट करें, नामांकन करें। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। देन इसके साथ ही अगर इलेक्शन में देखें तो 15,000 रुपीज शुड बी डिपॉजिटेड एज अ सिक्योरिटी अमाउंट फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है वो 15,000 रुपए एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाएगा हर एक प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव से। इन द केस ऑफ यू गॉट बी विनर, अगर आप विनर हो जाते तो ये 15,000 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे, दूसरे लोगों को भी मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपने 1/6 यानी कि 1/6 वोट भी अगर आपको नहीं मिले तो ये 15,000 रुपए आपके जब्त हो जाएंगे या आपके रिफंड नहीं होंगे। क्लियर है? देन ये तो बात हो गई इलेक्शन की, और मैनर ऑफ इलेक्शन मीन्स द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन की। अब बात करते हैं आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 जिसमें हम बात करेंगे टेन्योर की, यानी टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट। तो द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के टर्म और टेन्योर के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। एंड ही विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और वो री इलेक्शन यानी एक के बाद दोबारा भी उसको इलेक्शन किया जा सकता है। एंड ही और शी विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो जब भी उसको रिजाइन करना होगा वो अपने रेजिग्नेशन लेटर को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा, विल कम्युनिकेट दिस डिसीजन ऑफ रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा से इस चीज को कम्युनिकेट करेगा रेजिग्नेशन को, और सून विद इन द 6 मंथ द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट शुड नॉट बी वैकेंट, यानी उसको भर लिया जाता है, उस पोस्ट में किसी ना किसी का इलेक्शन करवा दिया जाता है। ये तो बात हो गई टर्म और टेन्योर की, ये आर्टिकल 56। अब आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 री इलेक्शन का प्रोसीजर बताता है। री इलेक्शन, तो in the constitution of India there is no point to be included that how many times a person or a people can be designated in the post of president, यानी कि कौन कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी एज मच एज यू कैन, आप जितनी भी बार भी बनना चाहते हैं उतनी बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए एंड अदर कंट्रीज, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही बना जा सकता है, यानी कि 2 पीरियड 2 टर्म के लिए ही आपको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा सकता है। बट इन द कंट्री ऑफ इंडिया, इन द कंट्री इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज है, मैं इसको आगे बताऊंगा। देन आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 बताता है आपको क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी। एक प्रेसिडेंट बनने के लिए आप में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, as well as he should completed at least 35 years of age, यानी 35 years of age के आपका होना ही चाहिए। एक भी दिन अगर कम रहेगा तो you are not eligible people or a person who got nominated। ठीक है। देन मिनिमम एज की लिमिट है 35 years, लेकिन मैक्सिमम एज की लिमिट पता नहीं कितनी, यानी कि अगर आप 100 साल के भी हैं तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी एज नहीं डिसाइड की गई है कि किस मैक्सिमम एज तक आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए जा सकते हैं। बट द मिनिमम एज इज 35 years, you have to be completed at least 35 years of age, and he having a qualification or a qualified to become a member of parliament या लोकसभा। तो लोकसभा मेंबर्स को बनने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। देन ऑल्सो यू विल बी सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। एंड the fourth point it will be, he should not to be hold an office of profit
प्रॉफिटेबल ऑफिस, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर हो ना हो, यानी सरकारी पद पर ना हो, आपकी सरकारी नौकरी ना हो विद इन द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये कुछ इसकी क्वालिफिकेशंस हो गई। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी क्वालिफिकेशन तो हमारी इंडिया में 50% ऑफ पीपल्स के पास है, वो 35 ईयर्स हो चुका है, लोकसभा का मेंबर बनने के लायक है, और अधिकतर लोगों के पास सरकारी नौकरी भी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी है। तो हम सबके पास तो ये क्वालिफिकेशन है, तो क्या हम भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं? इसका आंसर है नो, बहुत हद तक नो। व्हाई? क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, 50 आपके मेंबर ऐसे होने चाहिए जो प्रपोजल्स होने चाहिए, 50 प्रपोजल्स जिसमें एमपी या एमएलए शामिल हो जो कि आपके नाम को प्रपोज करें, एंड 50 आपके एमएलए ऐसे नॉमिनेटर्स होने चाहिए, 50 नॉमिनेटर्स होने चाहिए जो कि आपके नॉमिनेट करने वाले हो। यानी जब आप पर्चा भरने जाएंगे इलेक्शन में तो 50 लोग आपको नॉमिनेटर्स होने चाहिए और 50 प्रपोजल्स होने चाहिए, और ये दोनों ही इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। क्या होने इंपॉर्टेंट है? इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। किसके? या तो एमपी हो या तो एमएलए हो, ठीक है, यानी कि एमपी या एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का कोई ना कोई सदस्य हो। तो 50 + 50 100 ऐसे इलेक्टेड एमपी या एमएलए होने चाहिए जो कि आपके नाम का प्रपोजल करें और आपके नाम को नॉमिनेट करें। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको ये 50 + 50 100 मेंबर्स मिलेंगे कैसे? तो इसीलिए हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इस तरीके से बिल्कुल भी नॉमिनेशन नहीं रख सकते हैं, नहीं इलेक्ट किए जा सकते जब तक कि हम इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ना करें। ओके, देन द आर्टिकल 60 ओथ यानी शपथ। अब आपका इलेक्शन हो चुका है, अब आपको क्या लेना है? शपथ लेना है ना। तो ही और शी विल टेक ओथ इन द फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो ओथ होगा प्रेसिडेंट का अंडर आर्टिकल 60, जो शपथ ली जाएगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष या सामने इन द फ्रंट ऑफ हिम ली जाएगी। बट इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपने ओथ को, अपनी शपथ किसके सामने लेगा? जो सीनियर जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके सामने वो शपथ ले सकता है। उस शपथ में वो क्या करेगा? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो जो इस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको बहुत ही एग्जीक्यूटिवली यानी उसको फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा। ऑल्सो एग्जीक्यूट तो करेगा ही, एंड ऑल्सो ही शुड बी टू डिवोट अनसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो कॉन्स्टिट्यूशन को सर्व करेगा और साथ ही साथ जो पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके प्रति एग्जीक्यूट करेगा और बहुत ही फेथफुली सर्व करेगा। ये ऐसी ओथ लेता है। देन अब आता है आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 इसमें है प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जिसको हम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर देखें किसी एमपी या एमएलए को हटाना हो तो हम सिंपल उसके लिए यूज करते हैं टर्म रिमूवल ऑफ एमपी एंड एमएलए। बट इन द केस ऑफ अ प्रेसिडेंट विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड एक गरिमा का पद है, इसके लिए हम सिंपल वर्ड रिमूवल का यूज ना करते हुए हम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग टर्म का यूज करेंगे। महाभियोग टर्म का यूज करेंगे, यानी इट इज सेम एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू दिस प्रोसेस महाभियोग। यानी जो रिमूवल होगा उस प्रेसिडेंट का वो इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अनुसार होगा थ्रू द इम्पीचमेंट, जिसको हमने नाम दिया। सो इसमें होगा क्या? भी इम्पीचमेंट होता क्या है? तो या तो लोकसभा और या तो राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक इस प्रपोजल को, इस रिजोल्यूशन को पास करवाएगा, एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और वो रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें कम से कम 1/4 लोगों का साइन होना चाहिए। ओके, तो अब जब ये रिजोल्यूशन जाएगा जिसमें 1/4 ऑफ द मेंबर, जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे,
वो क्या करेंगे, एक 14 डेज पहले नोटिस प्रोवाइड करेंगे उस प्रेसिडेंट को कि हाँ आपके ऊपर महाभियोग यानी आपके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस होने वाला है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसके पहले रिजाइन कर सकता है, और अगर वो रिजाइन कर देगा तो उसके ऊपर ये इम्पीचमेंट नहीं फॉलो होगा, नहीं लगाया जाएगा। इन केस अगर वो 14 डेज जो नोटिस जाने के पहले तक वो रिजाइन नहीं देता है तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगेगा, लेकिन उस इम्पीचमेंट को लगने की भी बहुत कंडीशंस है। पहला, मान लीजिए लोकसभा ने क्या किया कि उस रिजोल्यूशन को पास किया, देन रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट जो होगा वो पास होगा। देन पास होने के बाद जो अगर लोकसभा ने पास किया तो ये जाएगा राज्यसभा के पास, ठीक है, और राज्यसभा उसको क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो बाई 1/4 ऑफ द सिलेक्टेड मेंबर्स मेजोरिटी में उसके पास जाएगा। देन राज्यसभा जो दूसरा हाउस है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। एंड अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर ये पाती है कि इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन सही साबित हुआ, देन जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके सिलेक्टेड मेंबर्स का ऑल अराउंड 2/3 ऑफ मेजोरिटी विल पास द रिजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव यानी इम्पीच करने के लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही एक रिजोल्यूशन पास करेगी टोटल मेंबर्स का। एंड द चार्जेस इम्पोज्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस। जैसे मैंने बता चुका है कि ये पास करेगी तो ये इन्वेस्टिगेट करेगी, ये पास करेगी तो ये इन्वेस्टिगेट करेगी, और दोनों ही हाउसेस से अगर ये पास हो गया तो एक रिजोल्यूशन 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जाएगा। एंड प्रेसिडेंट को भी ये राइट है कि अगेंस्ट इट्स रिजोल्यूशन वो अपनी बातों को रख सकता है, खुद को प्रूव कर सकता है। देन ही हैज अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय द काउंसिल, सीधी सी बात। एंड 2/3 ऑफ मेजोरिटी से उसको रिमूव किया जा सकता है, यानी इम्पीच किया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीज ये है कि अभी तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। सो द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। अगर सपोज इम्पीचमेंट हो भी जाता है तो जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की शुड नॉट बी वेकेंट, यानी इट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स। और जब तक ये पोस्ट वापिस से इलेक्ट नहीं होती है तब तक वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि देन ऑल द डिस्प्यूट्स अराइजिंग टू द कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट सामने आता है विल बी डिसाइडेड बाय ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। और ये चीजें हाँ कहां पे डिसाइड की गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड गई है अंडर अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट of 39th amendment and 44th amendment that was in 1975 and 1978. So it is decided that included that any issue, any dispute regarding the election of president should be entertained in and only Supreme Court of India. So we have much discussed about the president, including the different articles which were provided in our constitution, excepting one article. एक आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो हमने सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया। एंड नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 53 इन विच वी विल डिस्कस द वर्क एंड फंक्शंस ऑफ एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन आवर अपकमिंग वीडियो। आई होप you all got all the things which we have discussed today. So I will be coming back with the power and functions of president in later video. Till then, take care and bye bye.